Hello, dear friends. Vande Mataram. Welcome to a new lecture of the hydrocarbon. In our previous lecture, we have started to learn about the chemical properties or the chemical reactions of the alkane. We already discussed Markovnikov and the Markovnikov anti-Markovnikov rule from the alkane. Okay. Now there is one more addition reaction, that is addition of the sulfuric acid. Okay, alkane को जब sulfuric acid में ऐड करते हैं तब क्या हो सकता है? In simple, there is one pi bond in the alkane. So ये pi bond break हो गया. sulfuric acid को दो पार्ट में हम कैसे ऐड कर सकते हैं? So cold and concentrated sulfuric acid adds to the alkene in accordance with Markovnikov rule. As per as Markovnikov rule क्या होगा दोस्तों? जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके साथ हमारा ये ग्रुप ऐड हो सकता है और ज्यादा हाइड्रोजन है उसके साथ हाइड्रोजन हो सकता है. दैट इज Markovnikov rule which you already know. To form alkyl hydrogen sulfate by the electrophilic addition reaction. Okay, so here we go for the example. Here you can say this is ethene and this is sulfuric acid. So after the addition of the sulfuric acid, one hydrogen is going to attach with this carbon, so become CH3. Then pi bond is going to break, it means single bond. CH2 उसके साथ क्या होगा दोस्तों? OSO2s, और you can write SO3H also. यहाँ पे दोस्तों आप चाहो तो ओ ओ लिखा बिकॉज ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट हुआ है. सो OSO2 देन OH और SO3H. क्लियर? सो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट. हियर द प्रोपेन. इन द फर्स्ट एग्जांपल हमको यहाँ पे दोस्तों बहुत आइडिया नहीं आएगा अबाउट द मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन. ड्यूअल बॉन्ड के साथ दोनों कार्बन चेन इक्वल है. हियर यू कैन से दिस इज asymmetrical alkene. So now we go for the Markovnikov rule. Here you can see, सपोज ये अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन है, इसके साथ कम हाइड्रोजन है. सो OSO2 OH is going to attach with this carbon जिसके पास कम हाइड्रोजन है. Here you can see, and this hydrogen is going to attach with this carbon. So our product is CH3CHOH, CH के साथ OSO2H और SO3OH. Sorry, SO3OH. Yes, दिस इज प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट. अगर दोस्तों ये एंटी मार्कोनिकोव रूल होता, देन प्रोडक्ट क्या मिलनी चाहिए थी? CH3CH2CH2OSO2OH. बट एज वी डिस्कस मार्कोनिकोव है, सो दिस इज देयर फाइनल प्रोडक्ट. आई होप दोस्तों मार्कोनिकोव सबको याद होगा. फिर से मैं याद दिला दूं तो जब भी ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा उसके साथ दोस्तों एडिशन होने वाला है. दोनों में से कौन से कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप मिलेगा? वो कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप मिलेगा जिसके साथ कम हाइड्रोजन है. दैट इज मार्कोनिकोव रूल. ओके, नाउ एडिशन ऑफ वाटर. अगेन एडिशन ऑफ वाटर इज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ Markovnikov rule. Yes, Markovnikov rule. As per as Markovnikov rule हम ये जानते हैं, सपोज दिस इज कार्बन ड्यूअल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे H2O में से H प्लस एंड OH माइनस. सो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक के साथ जाएगा OH, सेकंड के साथ H. सो प्रोडक्ट दोस्तों कुछ इस तरह से होगी. देयर इज नो डाउट ये प्रोडक्ट होगी. बट द थिंग इज, यहाँ पे दोनों में से जो भी कार्बन के साथ कम हाइड्रोजन होंगे उसको मिलेगा OH एज पर एज मार्कोनिकोव रूल, और अनदर वन को उसको मिलेगा दोस्तों H. सो हियर वी कैन गो फॉर द एग्जांपल. आपके सामने दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिख रहे हैं. दिस इज CH3C dual bond CH2CH3. So as per as rule 1, 2 and 3. So at the position 2 पर methyl है. So 2 methyl, then prop 1 in or propane. So this is 2 methyl propane. This is H2O. Okay. यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ये अल्किन के जो दो कार्बन है, this and this. यहाँ पे on the first carbon 2 hydrogens are there. On the second carbon there is no hydrogen. So as per as Markovnikov rule, H2O में से जो OH माइनस रहेगा, higher electronegative group is going to attach with the second number carbon and hydrogen is going to attach with the first number carbon. Very simple. Here you can see in presence of acidic media. Here you can see मैं दोस्तों कार्बन को इंडिकेट करता हूँ. ये फर्स्ट नंबर कार्बन है हमारा. दिस इज द फर्स्ट नंबर कार्बन जो था. Then this is second number carbon. With this second number carbon, one OH group is there. फर्स्ट नंबर कार्बन वन H इज देयर. दैट इज अबाउट द मार्कोनिकोव रूल. यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन था सो एक हाइड्रोजन मिला, बिकम 3. यहाँ पे कम हाइड्रोजन था सो H मिला. सो व्हाट अबाउट कार्बन नंबर 2 and 3? You can say कार्बन नंबर 2 3. सो दिस इज अवर 3 नंबर कार्बन. ओके, साइड चेन कहाँ पे? दिस इज अवर साइड चेन.
क्लियर। सो ये एडिशन ऑफ वाटर ये भी दोस्तों एज पर एज मार्कोनिकोव रूल ही होगा, 2 मिथाइल प्रोपेंटोल। देन वी गो फॉर द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में दोस्तों दिस ड्यूल बॉन्ड, जो ड्यूल बॉन्ड है इजी टू ऑक्सीडाइज, उसको हम इजीली ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। So alkenes are reaction with the cold dilute aqueous solution of potassium permanganate. That is strong oxidizing agent, also known as a Bayer's reagent. Potassium permanganate, Bayer's reagent. Produce vicinal glycols. Glycol means हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 बार होगा, विसिनल मीन्स नियरेस्ट कार्बन पे। Decoloration of KMnO4 solution is used as a test for saturation। दोस्तों ये अनसेचुरेशन, सॉरी ये क्या है, KMnO4 का खुद का कलर दोस्तों कौन सा रहेगा, डार्क पर्पल या फिर वायलेट कलर रहेगा। अगर ये रिएक्ट कर रहा है विद दी एल्किन, इट मींस इसका यूज हो रहा है, सो इसका जो खुद का अपना कलर है वो कलर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अगर डीकलरेशन, सो डीकलरेशन कब होगा, जब उसकी रिएक्शन पाई बॉन्ड से होगी, पाई बॉन्ड होगा इट मींस वहां पे अनसेचुरेशन होगा। सो ये अनसेचुरेशन टेस्ट में भी यूजफुल हो सकता है। दिस इज आर प्रोपेन विथ H2O। This OO is indicated for the oxidation dilute KMnO4 at 273 Kelvin। So alkene से दोस्तों क्या हो सकता है, ये you can see ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ओके H2O में से एक को मिला OH, सेकंड को H मिला, बट ये ऑक्सीजन भी है ना OH, सो ये हुआ इथिलीन ग्लाइकोल। Ethane 1,2-diol is nothing but the ethylene glycol। Clear? Ethane 1,2-diol is nothing but the ethylene glycol। Okay. Here we go for the second example। कौन से रूल पे वर्क कर रहा है, एज पर एज मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव। दोस्तों यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्कोनिकोव हो या एंटी मार्कोनिकोव हो, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। H2O में से किसी के को H मिलेगा, एक को H2O का हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिला के OH मिलेगा। सो हियर यू कैन सी द प्रोडक्ट CH3CH ब्रैकेट OH CH2OH। इट मींस इसको दोस्तों मैं इस तरह से लिख सकता हूँ CH3CHOH, देन अगेन CH2 उसके साथ फिर से OH। so propane 1,2-diol, I mean to say another glycol is there, so this reaction is able to form a glycol। then एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, बट यहाँ पे कौन सा मीडिया में था, ये यू कैन सी एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट विद कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। अभी यहाँ पे कौन सा है, एसिडिक है। और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट मींस K2Cr2O7। परमैंगनेट तो हमको पता ही था KMnO4। ओके, ऑक्सीडाइज अल्किन, अल्किन को ऑक्सीडाइज कर सकते हो। ओके, अल्किन को अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो किसमें ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, दिस इज K2Cr2O7। कीटोन और एसिड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एल्किन, किस तरह का एल्किन है और कौन सी कंडीशन, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, इन दैट बेसिस वी कैन कन्वर्ट इनटू कीटोन्स और एसिड। ओके, that we will see in the example। Here you can see CH3 twice C dual bond CH2। इसका क्लियर मीनिंग क्या हुआ दोस्तों, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको। दिस इज कार्बन, देन C dual bond CH2, सो ये दोनों कार्बन हो गए। अभी ये कार्बन के जिसके ऊपर मैंने 1 नंबर लिखा, 2 मिथाइल ग्रुप्स आर देयर, सो आई कैन राइट लाइक दिस CH3 and CH3। यहाँ पे इजीली इसको ब्रेक डाउन करके अगर मैं ऑक्सीजन लगा दूं, देन आई विल गेट कीटोन। हियर यू कैन सी दिस इज 2 मिथाइल प्रोपिन KMnO4, H plus is the indication for the acidic media। So here you can see ये CH2 निकल के वहां पे क्या आया दोस्तों, O। So actually ये और कुछ नहीं बना, इतना पोर्शन निकल गया, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो, CH3 twice C dual bond, then CO2 and H2। So we will get ketone over here, propane 2 on। Another example, here you can see this is symmetrical alkene, CH3 CH CH CH2। अगर आप नंबरिंग दोस्तों ठीक से करोगे आपको कुछ इस तरह से मिलेगा 1 2 3 and 4। so at the number 2 कहीं से भी आप नंबरिंग करो, whether you can start from the right hand side, then numbering 1 2 3 and 4। in both cases numbering are common। so पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दोस्तों दो इक्वल चेन मिलेगी, इजीली यहाँ से हम ये 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड और इसको भी 2 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। KMnO4 H+ फॉर द एसिडिक कंडीशन
and we will get twice CH3C dual bond OH, that is ethanoic acid. So ये 1 and 2, so total 2 moles of or 2 molecules of acetic acid और ethanoic acid. Simple. देन ओजोनोलिसिस, दोस्तों ओजोनोलिसिस समहाउ एक डिफर रिएक्शन है, याद रखना है। ये पाई बॉन्ड को दोनों को ब्रेक करके ऑक्सीजन के साथ ओजोन के तीनों कार्बन एटच हो सकते हैं और फिर उसका हाइड्रोलिसिस से हमको मिल सकता है एल्डिहाइड या कीटोन या टू डिफरेंट कीटोन और टू सिमिलर कीटोन, टू डिफरेंट एल्डिहाइड और टू सिमिलर एल्डिहाइड्स, ये वी कैन सी। और यही दोस्तों सेम टॉपिक आपको फिर से 12th में पढ़ना होगा। 12th में हमारा एक चैप्टर होगा एल्डिहाइड कीटोन एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड। In that chapter we are going to made ketone or aldehydes from the alkene from this reaction, so ये repeat होगा। Ozonolysis of the alkenes involves the addition of ozone molecule into alkene to form ozonide, ozonide form करेगी। ओजोनाइड दोस्तों फिर से कुछ इस तरह का कंपाउंड होगा जिसमें यहाँ पे 2 डिफरेंट कार्बन चेन होगी और एक ऑक्सीजन होगा, इतनी चेन को हम बोलेंगे ओजोनाइड। देन the cleavage of the ozonide by zinc oblique H2O to the a smaller molecule. This reaction is highly useful in detecting the position of the dual bond in alkenes or other unsaturated compounds. alkene या alkene में दोस्तों ड्यूल बॉन्ड कहाँ पे है ये हम चेक कर सकते हैं। जहां पे भी ड्यूल बॉन्ड होगा इट इज वेरी क्लियर वहीं पे रिएक्शन होगी। आई रिपीट, जहां पे ड्यूल बॉन्ड होगा वहीं पे रिएक्शन होगी, दैट इज वेरी क्लियर। सो ड्यूल बॉन्ड कहाँ पे ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। हियर यू कैन सी दिस इज प्रोपिन, सो विद द रिएक्शन ऑफ ओजोन ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, देन सेकंड बॉन्ड ये भी ब्रेक होगा, दोनों के इंडिविजुअल वैलेंसी कॉमन वैलेंसी होगी विद द ऑक्सीजन एंड टू अनदर वैलेंसी विद द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स। हियर यू कैन सी दिस इज ओजोनाइड। सो कोई भी एल्केन चेन में ओजोनाइड कहाँ पे बनेगा, जहां पे कार्बन कार्बन ड्यूल बॉन्ड प्रेजेंट हो। सो एक्चुअली दिस टेस्ट इज आइडेंटिफाई द ड्यूल बॉन्ड। ड्यूल बॉन्ड कहां पे है ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर। सो आफ्टर द रिएक्शन विद द जिंक एंड H2 टू पॉसिबिलिटीज आर देयर। सपोज इतना बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से CH3CHO, दिस इज एल्डिहाइड, CH2 it means HCHO, this is again aldehyde, formaldehyde. So here you can see CH3CHO ethanol, HCHO methanol, 2 times hydrogen, 1 carbon, 1 oxygen. Let's go for the another example. यहाँ पे भी दोस्तों सिमिलर रिएक्शन होगी, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और ऑक्सीजन क्या होगा, कुछ इस तरह से दोनों के साथ कंबाइनली अटैच होगा। ऑक्सीजन कंबाइनली यहाँ पे अटैच होगा। सो देन अगर आगे रिएक्शन हुई सो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। So this is CH3C dual bond or CH3 and this is HCHO. Here you can see ये ओजोनाइड बना, then reaction with the zinc and H2O. So इतना बॉन्ड ब्रेक हुआ है दोस्तों, CH3C dual bond हो, यहाँ पे ना dual NH, यहाँ पे सिमिलर दोस्तों 2 times CH3 उसकी जगह पे आप ये सोच सकते हो 2 times हाइड्रोजन। So HCHO. Okay, so another product is formaldehyde. वेरी सिंपल रिएक्शन। वीडियो थोड़ा पॉज करके दोस्तों थोड़ा रिटर्न जाके आप इसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक से पढ़ सकते हो। देन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, यू आर वेरी फैमिलियर टू दी पॉलीथीन बैग्स। पॉलीथीन बैग आप जनरल केस में यूज कर ही रहे हो। सो पॉलीथीन शीट्स, पॉलीथीन बैग्स एक्सेट्रा। Polythene is obtained by the combination of large number of ethene molecules at high temperature, high pressure in presence of suitable catalyst. The large molecule thus obtained called polymer. This reaction is called as a polymerization. और जिसका polymerization हो रहा है that are monomers. Okay, so here you can see N times CH2 dual bond CH2 at high temperature, at high pressure in presence of catalyst. So ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए, एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। यहाँ पे N मॉलिक्यूल्स है, सो यहाँ पे जो हमारा यूनिट बना दैट इज रिपीटिंग यूनिट N होगा, उसको हम बोलते हैं पॉलीथीन। N मींस वही नंबर है जितने नंबर के दोस्तों हमने ऑलरेडी मोनोमर्स लिए। सो ये हुआ मोनोमर, ये हुआ पॉलीमर और ये प्रोसेस हुई उसको हम बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। सिंपल।
फिर से ये पॉइंट के आगे भी दोस्तों वीडियो पॉज करना है, ठीक से देखना है, समझना है, देन आगे बढ़ना है। अनदर एग्जांपल, यहाँ पे दोस्तों CH ड्यूअल बॉन्ड CH2, ये हुआ प्रोपिन। इसको मैं कुछ अलग से दोस्तों आपको समझा सकता हूँ, सॉरी, यही एग्जांपल को आपको इस तरह से याद रखना है। CH ड्यूअल बॉन्ड CH2 CH3 n टाइम्स। सो ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन ये पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो। सो CH यहाँ पे CH2 आगे एक नया बॉन्ड बना दो। ओके, ये कार्बन के साथ ऑलरेडी क्या है, मिथाइल ग्रुप है, सो CH3 n टाइम्स। सो दिस इज अवर पॉलीप्रोपिन, इसको बोलते हैं PP। यूजफुल, वेरी यूजफुल कंपोनेंट्स आर पॉलीमर्स। डेली लाइफ में दोस्तों हम बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में इसका यूज कर रहे हैं। So polymers are used for manufactures of the plastic bags, squeeze bottles, refrigerator dishes, toys, pipes, रेडियो, टीवी कैबिनेट एक्सेट्रा, ये सभी चीज में ये यूज होगा। और 12th में दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 15 है, दैट इज पॉलीमर। वहां पे ये सभी चीज हम डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। सो पॉलीमर इज होल चैप्टर, एक पूरा चैप्टर है दोस्तों। Polypropylene is used for the manufacturing of milk, मिल्क ग्रेड्स, कैरेट जो मिल्क के होते हो, देन प्लास्टिक बकेट्स एंड अनदर मोल्डेड आर्टिकल्स। ओके, ये सभी चीज में दोस्तों इसका यूज होगा। देन यू कैन सी दो दिस मटेरियल्स आर, आई रिपीट, दो दिस मटेरियल्स आर, sorry, materials have now become common. Excessive uses of polythene and polypropylene is a matter of a great concern for all of us। हमारी लाइफ दोस्तों इजी बनाने के लिए इन दोनों का जो यूज हुआ है वो बहुत ही बड़ा है, ये दिमाग में रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीमराइजेशन। 12th में फिर से चैप्टर होगा, तब तक दोस्तों इसको ठीक से याद रखना है, इसकी नोट्स बनानी है, इसको स्टोर करके रखना है। क्लियर? देन in our next lecture we are going to learn about alkynes। दोस्तों अल्केन कंप्लीट हुआ, ये लेक्चर में अल्कीन कंप्लीट हुआ। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गो फॉर द एल्काइन। सो एल्काइन रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में यानी कि राइटिंग एग्जाम में, उसके अलावा कॉम्पिटिटिव में भी हो सकते हैं। आफ्टर द फिनिशिंग चैप्टर उसको हम ठीक से दोस्तों आइसोलेट करेंगे। ओके, उसमें उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे अगर कोई क्वेरीज है। ठीक है, सो फाइनली आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। वीडियो आपको पॉज करना है, बारी बारी से सभी पॉइंट्स पढ़ने हैं। अगर कोई डिफिकल्टी है देन आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो फाइनली दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, जरूरत आने पर स्कूल भी आते रहिए। ओके, बाय बाय।